Listen again. Let P be the point where fields are equal and opposite. E1 is equal to E2 है ना. तो P point फर्स्ट चार्ज से 40 माइक्रोकूलम से 12 प्लस x डिस्टेंस पर है. तो 40 इंटू 10⁻6 इधर और ये 12 प्लस x डिस्टेंस का स्क्वायर. और ये वाला -10 माइक्रोकूलम 10⁻6 विल गेट कैंसल हियर आल्सो. और यहाँ से डिस्टेंस x लिए. दिस इज x स्क्वायर. तो कांस्टेंट एंड अदर कॉमन फैक्टर्स गेट कैंसल्ड. ये इक्वेशन बची. रूट लिया, ये आ गया और सॉल्व किया तो x की वैल्यू 12 आ गई. देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम 40 microcoulomb will be 12 plus 12 is equal to 24 meter. Got it? माइनस वाला साइन नहीं ले रहे. माइनस वाला लेंगे तो पता क्या आएगा. देखो यहाँ से देखो, सी केयरफुली. यस्टरडे जो सेकंड आंसर आ रहा था, ये देखो 24 वो आंसर है. देखो वो आउटसाइड हो रहा था, वो -10 के लिए आया था ना. इफ सेकंड चार्जेस इसको -10 कर दो. यहाँ पे था ना, कहाँ गया ये वाला. +10 की जगह माइनस है तो सेकंड वाला आंसर. तो समथिंग आई टोल्ड यू मैथमेटिकली सेकंड पार्ट इज आल्सो करेक्ट. अभी इसमें ये माइनस लेंगे ना तो ये वाला आंसर आएगा. ये पहला वाला कहाँ गया, 8 -8 आएगा. -8 मीन्स लेफ्ट साइड इधर, यहाँ कहीं पर. यहाँ पर -8 मीन्स नहीं, उसमें माइनस नहीं आएगा. उसमें आना चाहिए मेरे ख्याल से -4 आना चाहिए. लेट अस सी कितने आ रहा है. 2 अपॉन ये माइनस साइन का विच इज नॉट करेक्ट, बट फिर भी चेक करते क्या आ रहा है. इफ यू सॉल्व इट इज कमिंग 2x इज इक्वल टू -12 माइनस x. तो 3x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -4 है ना. देयरफॉर from -4 means towards left. -4 means left side, opposite side. तो अपोजिट साइड किधर, हम लोगों ने x इस तरफ लिया राइट वर्ड, दिस इज लेफ्ट वर्ड. यहाँ पे -4, दिस इज 4. तो बिगर चार्ज से कितना हो जाएगा, 12 - 4 दैट इज 8. तो जो इसका जो आंसर आ रहा है ये, देयरफॉर from bigger charge, you don't have to write, I am just explaining you. 12 - 4 that is 8 meter. इसमें देखो ये आया था 8 मीटर. इसका जो फर्स्ट पार्ट था कहाँ गया, 8 ये वाला है, वो इसमें आ रहा है 8, which is not possible. ये वाला आंसर नॉट पॉसिबल. लिख लो, इसको लिखो नहीं. Just I was explaining you mathematically there are 2 answers. Second answer will be there for the other case. तो ये आंसर सही है इसका. बस either you write 12 meter from the -10 microcoulomb or 24 meter from the 40 microcoulomb. ये दो आंसर. Shall I rub it off? इसको मत लिखो. Just I wanted to show you second answer is possible for the other case. Clear? तो जब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो null point will be on the line joining the two charges inside somewhere. If one is positive, other is negative, so null point will be outside. ये line हो गई, line on the line only, outside the two charges. In between नहीं होगा, outside होगा. जब दोनों के similar sign है तो it will be within the two charges, on the line inside the two charges, है ना. Clear? So listen the things very carefully. Everything is explained to you in the class, but then also mistakes are happening. And devote time, I am telling you now onwards, the day 1 onwards. Daily 2 hours you have to study each subject I am telling you.
Next year full course is there, you know. Nothing is deleted for next year. Everything you have to study. All right, moving on to the next one. चलो आगे देखते हैं. तो ये क्वेश्चन था. Anything is pending? Now some extra points. If you are interested, you can just note down. Therefore, CGS unit of charge is ESU, electrostatic unit. ESU stands for electrostatic unit, or sometimes also called stat coulomb, which is related to coulomb like this. 1 coulomb is 3 into 10 to the power 9 ESU. Quite a big value. Means ESU is very, very small, है ना? In terms of coulomb. ठीक है. So sometimes you may need it or you may not need it. So 1 coulomb is 3 into 10 to the power 9 ESU. That is stat coulomb, we also call it, or what? Electrostatic unit of charge, which is the CGS unit. ठीक है. You can make the note. And next one is gravitational force is always attractive and very weak. Mute it. Gravitational force is very weak as compared to electrostatic force. ठीक है, ये point हो गया. और masses of electrons, sometimes it is given, sometimes may not be given. So you should have rough idea. Electron का mass है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Mass of the proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. The proton is massive as compared to electron, roughly 1836 times massive, more mass. The electron is very light. All right. So masses are generally given, but may sometimes, if it is not given, just 2 or 2. All right. So these are the points. One more point. I was referring you, 1 coulomb charge can lift the elephant. So 1 coulomb charge is very big. Suppose, can you hold the 1 coulomb charge in your 1 coulomb charge in your both the hands, separated by 1 meter apart? Suppose यहाँ पे एक हाथ में 1 coulomb charge पकड़ लो, दूसरा इधर. Can you hold it? Answer is no, you cannot hold it. Even if it is point charge only, you cannot have that much force to hold. Let us see how much force it will apply on your hands. Distance 1 ले लो, तो force will be K is 9 into 10 to the power 9, 1 into 1 into 1 square, 9 into 10 to the power 9 Newton. Very, very high force, 9 billion Newton. All right. You cannot hold, your hands will break. And this is the force much bigger than the weight of the elephant. Suppose एक elephant है यहाँ पर, उसकी पीठ पे 1 coulomb लगा दो और ऊपर 1 coulomb, elephant will get lifted off the ground. क्योंकि उसका मास कितना होता है? Roughly 5000 kg into 10, 5 into 10 to the power, कितना हो गया? 4. This is much more than that. Elephant will take off and may not come back. That much force is there. It may be more than the escape velocity of the elephant, escape velocity of the object on the Earth's surface, which is 11.2 km per second. The 1 coulomb charge can produce very, 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 very massive force. Billions of newtons of force it can produce. All right. So 1 coulomb charge is, the electrostatic force is much bigger as compared to what is called gravitational force. 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, 2 प्रोटॉन ले लो, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो. तो रेशियो विल बी कमिंग, यू कैन चेक इट, 10 to the power 36 के ऑर्डर का रेशियो आएगा. अगेन मच हायर, much higher. All right. These are the points.
Now, before we start the new topic, that is electrical dipole, some more questions we'll do, then we'll move on to the, and this is the important question. This is in homework. I will not give you any hint for this. This is very important question. एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ. All right, just hold on. So this is the homework, very important. Solve and send, no answer, no hint will be given for this question. Two similarly and equally charged identical metal spheres A and B repel each other with force this much. A third uncharged sphere C is touched with A, then placed at the midpoint between A and B. Find net force on C. Similar question we have already done. You have to do it and send it. Just note down. Very, very important question, repeated in the boards and competitive examination. Clear to everyone? Reakshi, your homework is also not coming. Today onwards, you start sending. Don't worry about the right or wrong. Whatever you understand, you send it. Try your level best to do it and send it. जितना होता है उतना करके भेजो. Half होता तो half ही भेजो. But be sincere in your homework and in class also. Be attentive. Note down all the points. If you are not able to note down, just tell me. I will wait for that. Or anything doubt also, you can just clarify simultaneously. Unmute and ask the doubts. All right. चलो जल्दी से नोट कर लो. Okay. So this contains the points already discussed in the previous questions. उसी के पॉइंट यूज करना है, पीछे जो क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए नो एंड. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. नोटेड? यस सर. चलो, इसका नंबरिंग जो है, यू कैन जस्ट लीव नंबरिंग. दैट इज प्रीवियस असाइनमेंट है, उसमें से ऑलरेडी मेनी क्वेश्चन वी हैव डन. नंबरिंग यू कैन पुट इट. एंड ये वेक्टर फॉर्म का है, ये जस्ट वी कैन लीव इट. हाँ, दिस क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ मैं. आई जस्ट गिव यू, ट्राई टू सॉल्व इट, देन आई विल एक्सप्लेन यू. 3 charges Q, Q, Q are kept at vertices of equilateral triangle of side L as shown. Find the net force on the charge at C. C पर जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स निकालना है. और सेकेंड पार्ट में रिपीट, इफ चार्ज Q at A is negative. पहले पॉजिटिव है फर्स्ट केस में सारे, तो फर्स्ट पार्ट कर लो, फिर सेकेंड पार्ट. ट्राई टू डू इट. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. प्रीवियस पॉइंट्स अगर याद है तो यू डोंट हैव टू सॉल्व कंप्लीटली. डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं. कैन एनीबॉडी गेस द डायरेक्ट आंसर? दोनों पार्ट का डायरेक्ट बोल सकते हैं आंसर विदाउट यूजिंग द पेन. Sir, the answer can be f root 3. Sorry, root 3 times of F, the force. F how much? K Q1 Q2 by R. K Q square by L square. Q square by L square. Root 3 times, right? Already these points we have done it. और सेकंड का भी किया हुआ है. दैट जो हम लोगों ने वो एंगल निकाले थे ना, 30, आई मीन 0, 60, 90, 120 एंड 180.
सेकंड पार्ट में एंगल 120 बनेगा। 120 के लिए सेम आता है, एफ ही आता है आंसर। इफ यू सी द टेबल, आई मीन प्रीवियस क्वेश्चन, जब एंगल 120 था तो रिजल्टेंट वाज आल्सो इक्वल टू ईच ऑफ द फोर्स। देखो इसमें, लेट मी शो यू नाउ। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला नहीं है ये, वहां भी हमने के सिंबल यूज किया था, बट इट इज नॉट दैट, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लेट्स सी सॉल्यूशन इसका। देखो डायग्राम भी देखो। देखो फर्स्ट केस में when all the charges are positive, let me make some more bigger, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ओके, कैन यू सी नाउ? देखो फर्स्ट केस में ये वाला चार्ज ए वाला जो है इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, बी वाला इधर फोर्स लगाएगा, और एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। तो व्हेन एंगल 60, तो ये हमने सॉल्व किया था, √3 टाइम्स आएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर। आर की जगह एल लिख दो, दिस विल बी एल। 60 डिग्री वाला वेक्टर से ऐड करना है दोनों फोर्सेस, एक इधर फोर्स लग रहा है किधर, तो √3 टाइम्स, ऑलरेडी वी डिड दिस। और सेकंड पार्ट में व्हेन दिस इज माइनस, तो ये इसको इधर पुल करेगा, और ये प्लस है तो ये प्लस वाले चार्ज को इधर। नाउ सेकंड पार्ट में एंगल विल बी 120। जब 120 होता है, यहाँ पे cos की वैल्यू -1/2, व्हेन यू सॉल्व इट, इट कम्स सेम एज दैट ऑफ द ईच फोर्स। पीछे हमने सॉल्व किया हुआ है 120 के लिए, मैंने हिंट भी दी थी, और यू कैन सॉल्व इट अगेन इफ यू डोंट रिमेंबर द रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट, क्विकली सॉल्व कर लो। यहाँ से यहाँ पर 120 जगह सेकंड केस में दैट इज माइनस, तो एक एफ स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, एफ दूसरा फोर्स रहेगा, एफ ऑफ सी ए, एफ ऑफ सी बी है। तो इफ यू डोंट रिमेंबर, नो प्रॉब्लम, पुट द वैल्यू क्विकली एंड ट्राई टू डू देम फास्ट, ये आंसर आएंगे। देखो और अगर ये भी माइनस हो जाए तो फिर से ये ऐसे आ जाएगा, फिर से 60 डिग्री एंगल, फिर से ये आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? So these are the questions, similar questions are given in NCERT book also, solved example sometimes. So you have to have the vector addition, find out all the forces. Previous question जो homework में दिया है वो भी vector addition. In that case, previous question में angle में भी 180 डिग्री, तो subtract हो जाएंगे force. But forces में भी unequal, यहाँ पे equal है तो डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं हम लोग। ये ऊपर ही लिख दो यहाँ पर, इसका आंसर ये आ रहा है सेकंड पार्ट का, और फर्स्ट पार्ट का ये। फर्स्ट पार्ट का एफ नेट इज ठीक है। All right, moving on to the next one. The
देखो ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन समटाइम्स. प्रीवियसली आई टोल्ड यू, बीच में जो चार्ज रखते हैं इट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम. सपोज ये क्यू है, ये भी क्यू है, तो ये इसको इधर one charge will push it this side, other charge will push it this side with the same force. So this will be always in equilibrium. Put the any value. But what about these A and B? They should also be in equilibrium. What should be the value of charge Q in terms of capital Q? Question ये है, charge Q is placed at the midpoint here as shown. Show that system of charges will be in equilibrium if Q is 1/4 of each charge kept on A and B and minus of that. The screen is not showing. Yes. Previous question. The screen is not showing. I'm not getting you. Beta, you rejoin, the screen is there. I'm able to see it. Just come again. My audio is slightly faulty. I am not able to get you. Things are settled or? Hello. एक मिनट इसको हाइड कर. हाँ. Is there any problem? स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? वो सर? सर विजिबल है स्क्रीन मुझे तो. हाँ. आप कुछ लिख रहे हो क्या, क्योंकि वो स्क्रीन स्टेडी है. यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, राइट सर? Sorry. Children, is there any problem to anybody? No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है. All right. तो ये क्वेश्चन देखो, ये इक्विलिब्रियम ऑफ दिस वी कैन चेक इट आइदर चार्ज एट बी आर ए. अगर बी ए इक्विलिब्रियम पे होगा तो बी पे होगा, और सी वाला जो है, सी वाला ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम. ऑलराइट, तो लेट्स सी इफ वी चेक द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट बी. तो इस ए वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बी सी वाला भी फोर्स लगाएगा. नेट फोर्स शुड बी जीरो. नेट फोर्स शुड बी जीरो. देखो, नेट फोर्स ऑन द चार्ज शुड विल बी जीरो. सी सॉल्यूशन. देखो, charge at center C will always be in equilibrium irrespective of its value. तो उसका तो इशू नहीं है इक्विलिब्रियम का. इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो. तो यहाँ पर B वाला देखते हैं, B का या A का ले लो. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट B, नेट फोर्स ऑन इट शुड बी जीरो. तो उस पर दो फोर्स लग रहे हैं. एक तो B पर A वाला लगा रहा चार्ज, तो FBA, और B पर C वाला भी, ये वाला चार्ज भी लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, FBC शुड बी इक्वल टू जीरो. तो इनकी वैल्यू पुट कर दी, KQ² बाई R². यहाँ पे ये डिस्टेंस R ले लो, और ये मिड पॉइंट पे ये R/2 हो जाएगा. ये R/2 पुट कर दिया हमने. KQ1 Q2 बाई R/2² इज इक्वल टू जीरो. व्हेन वी सॉल्व इट, ये तो चला जाएगा, R² नीचे वो भी चला जाएगा, ये 2 पर कैपिटल Q एक यहाँ से चला जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारा Q². ओके, Q बाद में कैंसिल कर लो, एक यहाँ से ये 2 ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर होकर 4 हो जाएगा. इफ यू सॉल्व इट, तो दिस इज द आंसर. इफ सेंट्रल चार्ज इज 1/4 of charges kept at extreme points and minus also, so all will be in equilibrium. यहाँ पे तो आंसर दे दिया था मैंने, बट समटाइम्स ऑप्शंस में दिए होंगे. कॉमन सेंस से मुझे को बोल सकते हैं माइनस होना चाहिए. ये वाला जो चार्ज है इसको इधर पुश करेगा, और ये माइनस होगा,
इसको इधर करेगा, इधर खींचेगा तो बैलेंस करके रखेगा, तो आंसर शुड बी कमिंग इन माइनस। अगर तुम पहले से ही माइनस एक्स ले लो उसको, तो यहाँ पर फिर हम माइनस लिखते, एक फोर्स राइट में एक लेफ्ट में, तो एक्स की वैल्यू फिर q/4 आ जाती। तो इसका मतलब बाद में फिर हम एक्स को हमने माइनस लिया हुआ है, एक्स वुड हैव बीन माइनस q/4 ऐसा। इट शुड बी माइनस, अगर ये दोनों माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। फिर अपोजिट फोर्स जनरेट करना चाहिए उसको, no doubt. If there is any problem, you can ask, I can explain again. Midpoint का तो कोई भी रख दो, वो always in equilibrium. Keep it capital Q also here, that will be in equilibrium, but this they will not be in equilibrium. In this case you have to just leave all the three charges, none of them will move. अगर ये तुमने maintain किया ये ratio, तो put the three charges, none of them will move because all will be in equilibrium, net force will be 0 and none of them will move. Note down. Okay. All right. The next question is also important. Dekho, tell me how to do that question. Or you can do it at home. Think about this question. Just a minute. Dekho, a charge having magnitude q is divided into two parts, q and capital Q minus q. If two parts exert maximum force on each other, then find the value of ratio q/q. एक चार्ज q है, उसमें से कुछ स्मॉल q निकाल लिया, तो ऐसा बचेगा, ये q माइनस q हो जाएगा, स्मॉल q यहाँ पर। तो दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए. What should be the value of q in terms of capital Q, or in other words, find the ratio of capital Q by small q. क्वेश्चन ये ऐसे भी आता है, how much charge should be removed from the capital Q charge and kept nearby so that maximum force is there between the charges. तो maximum force के लिए क्या करना पड़ता है बोलो? Can somebody tell me what should be done to have the maximum force between the two charges or two masses even? Gravitation के लिए भी valid है ये question, and here also it is valid. Tell me, maximum force के लिए what is the condition or criteria? How to check force is maximum or what? Anybody? Sir, minimum distance between them. Minimum distance नहीं, for given distance. Minimum distance तो कुछ ना कुछ distance maintain करना पड़ेगा. You cannot, even if you touch them, then also center से center की distance will decide the force.
for given distance, whatever minimum distance is there, how much minimum bolo? For that force should be maximum, whether you keep it at 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, or 1 millimeter, 1 micrometer. For that particular distance, whatever you decide, R, कुछ ना कुछ तो R decide करेंगे, है ना? तो force between two charges, Q1 and Q2, should be maximum. और Q2 किसमें से निकाल लेंगे? इसमें से निकाल लें ना. This is Q2, this is Q2, this is Q1. एक bigger, suppose you have the 10 microcoulomb charge, उसमें से कितना निकाले और we keep it nearby at certain distance R, force is maximum. That is the question. The minimum distance is not the answer. Anybody else? Sir, df by dq must be 0. Yes, maximum minima से निकालेंगे. Maximum minimum हमने पढ़ा था mathematical tools में. Make the equation. One is Q1, other is Q2. F की equation लिखो. K Q1 Q2 by R square. ठीक है. कौन क्या वेरिएबल है? स्मॉल q इज वेरिएबल. तो df by dq निकाल के उसको 0 कर लो, इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो आंसर रिलेशन आ जाएगा दोनों के बीच में. q विल बी समथिंग q by 2 r q by 3 ऐसा कुछ आ जाएगा, r q by 4 समथिंग. तो रेशो मिल जाएगा फिर, एंड फोर्स भी मिल जाएगा, मैक्सिमम फोर्स भी. पुट द वैल्यू ऑफ दैट रेशो, value of that q in terms of capital Q, you will get the maximum force also for that distance. So maximum minima, wherever find out the maximum force or minimum force, you have to do the differentiation, make the equation, differentiate it, put it equal to 0 and solve it. That's all. Equation बनानी है, differentiate करना है, कौन सा वेरिएबल है? ये वेरिएबल, ये तो फिक्स है, कैपिटल Q is fixed. ऑलराइट, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देना है, और कॉमन टर्म्स तो लेफ्ट साइड में 0 होगा तो हट ही जाएंगे, एंड ये कैपिटल Q एंड स्मॉल q के बीच में रिलेशन आ जाएगा, उससे रेशियो आ जाएगा. तो ऑलवेज मैक्सिमम मिनिमम विल हेल्प यू इन दिस रिगार्ड. तो ट्राई करो इसको, आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो, है ना. ट्राई टू रिवाइज द थिंग्स, मैथमेटिकल टूल्स जो पढ़े थे उनको रिवाइज करो एंड डू इट. एंड कैलकुलस पढ़ी थी, डिफरेंशियल कैलकुलस में था ये. ओके, तो विल डिस्कस इट नेक्स्ट क्लास टुमारो. देखो, refer diagram and find the net force, net field at center C. ये लिखना नहीं है, don't write this, orally answer देना है ये, nobody will write. Net field at C will be how much? 0. Why 0? Equal and opposite है. Equal and opposite ये 2 force. माइक्रोकूलम की कितनी आएगी? अपोजिट. सेंट्रल फील्ड होती है, ज्वाइन द चार्ज एंड पॉइंट, ऐसा इधर आ जाएगी फील्ड, और ये वाले की किधर आएगी? इधर आ जाएगी. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट. 1 की किधर आएगी? ये वाले 1 की इस तरफ आएगी, और ये वाले 1 की इधर आएगी. डिस्टेंसेस आर सेम. नेट फील्ड इज 0 एट सेंटर. ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है. बट दिस वन यू टेल मी नाउ. सिमिलर क्वेश्चन ये है, उससे क्लू लेके टेक द क्लू फ्रॉम दैट, टेक द क्लू फ्रॉम दैट एंड टेल मी. क्वेश्चन ये है, रेफर डायग्राम एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट सी. नेट फील्ड जो है सी पर किधर होगा? ऑप्शंस है, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स अप और टुवर्ड्स डाउन. तीन ही ऑप्शन, 4 ऑप्शंस है, लेफ्ट राइट अप डाउन, नो अदर ऑप्शन. तो क्या करेंगे? एडिटिविटी नेचर ऑफ द चार्ज से वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ये 4 माइक्रोकूलम है, इसको 2 + 2 कर लो, और ये 3 है, इसको 1 + 2 कर लो. तो ये जो 1 है, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा.
और ये जो 2 है ये फर्स्ट वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे क्या, ये 2 बचा और ये 2 बचा। तो ये वाले 2 का जो है इधर फील्ड आएगी, ये वाले 2 की फील्ड इधर आएगी, है ना, और आइडेंटिकल है तो इनकी नेट फील्ड बाइसेक्टिंग एंगल पे आती है, वर्टिकली डाउन, तो आंसर होगा डाउनवर्ड। अगर तुम्हें ऐसा कुछ ऐसे ऑप्शन दे दें ए बी सी डी, तो अलोंग सी ए, नहीं सी तो ऊपर है, उसको ओ कर लो, फिर मिड पॉइंट को ओ कर लो, अलोंग ओ ए डाउनवर्ड। सी अगेन, लेट मी सी, आई हैव मेड द डायग्राम, सेपरेट डायग्राम फॉर दिस। देखो उसको हमने क्या किया, कैंसिल कर, जो मैंने बताया ना, उसको ब्रेक करके 4 को 2 + 2 ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा हो गया ये। तो बचा क्या है, 2 and 2, 2 माइक्रोकूलम 2, इस वाले की इधर आएगी, इसकी इधर आएगी, और नेट विल बी डाउनवर्ड। तो आंसर है अलोंग ओए। ठीक है, डाउनवर्ड न लिख के ओए लिख सकते, ओए द प्रॉपर वर्डिंग इधर। तो ब्रेक कर सकते चार्जेस को हम, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें तो यही लॉजिक लगाना पड़ता है टू गेट द राइट आंसर। अगर ये कुछ और होता है, यहाँ पे अगर सपोज -2 बचता है इसका, अगर ये -2 मतलब इसको ऊपर वाला अगर 1 - 2, नहीं ठीक है, चलो इसको छोड़ दो, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। समझ में आ गया ये? Come on, any difficulty in this? Understood, sir. No, sir. ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आते हैं, एंड आई थिंक दिस वाज आस्किंग नीट का क्वेश्चन नहीं है, बट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन कैन डिफर, बट लॉजिक ऐसे ही लगानी है तुम्हें, है ना। Okay, this we are done, this we are done, ये भी अभी हो गया डिस्कस। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? देखो, charge q of mass m is released from rest in field E is equal to 3t square, where t is a time. Find velocity of charge after time t. चार्ज पार्टिकल का टाइम t के बाद वेलोसिटी निकालनी है। बोलो। How to solve this question? Electric field is given, mass is given q, इसी के टर्म में सिंबल्स, you will have the answer in terms of q, m and t. Can anybody tell me some how to do this question? केवल बताना है, I don't want answer now, only how to tackle this problem. बोलो, unmute and reply, जिसको भी, whatever you want to say. Anybody? Yes, Shashwat, you want to reply? Chitrisha? Ayush, can you hear me? Ayush, you want to reply? सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते, उससे आर हाँ। निकल जाए। Again?
Sir, we can equate weight of the electron with force Q. ओके, फोर्स कैसे मिलेगा? Q into E. Q into E. F is equal to Q into E. एक मिनट, जस्ट लेट मी, F is equal to Q into E. तो उसका चार्ज Q, ठीक है, E is given here, हाँ ठीक है, ओके, F मिल गया। देन after that, after getting F, what to do? Equate it with mg. F equal to m. F is equal to ma, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आफ्टर दैट वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ट्राई करो, देखो, ट्राई टू डू इट एंड सेंड, जितना होता है करके भेजो, डोंट वरी वेदर राइट और रॉन्ग, डू योरसेल्फ, जितना भी समझ में आता है। आई हैव गिवन यू सम, ठीक है, यहाँ तक ओके है, अप टू दिस स्टेप। फोर्स मिल जाएगा, आई मीन F is equal to Q into E, एक्सेलरेशन मिल जाएगा F by m। आफ्टर दैट क्या करना है, थिंक अबाउट दैट एंड ट्राई टू डू दैट एंड सेंड इट टू मी। ठीक है, ये ऐसा किया था हमने शायद पहले क्वेश्चन, यहाँ तक किया था, उसके बाद जो है वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन, बट थोड़ा डिफरेंस है। यू हैव टू बी केयरफुल आफ्टर दिस, यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन वी हैव डन, दैट वाज डिफरेंट, यहाँ तक कॉमन है, आफ्टर दैट डिफरेंट है। दैट डिफरेंस यू हैव टू पिन पॉइंट एंड डू इट। ठीक है, नोट कर लो ये क्वेश्चन। now we can see, थोड़ा सा टाइम है अभी बाकी, we can see electric dipole. Next important topic is electric dipole. Alright, देखते हैं। ओके, हाँ एक क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल वी कैन डू इट टुमारो। वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू एक्सप्लेन। नोट कर लिया ये? Yes, sir. No, but one more question, this one. Question is this: if charged pendulums, दो pendulums हैं, we have the two pendulums, are in equilibrium, right relation for tan theta. ये थीटा है, देखो, इसका रिलेशन लिखना है, tan थीटा का रिलेशन लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा, here we are suspending the two pendulums, both are charged, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है, तो they will repel each other, and come to the equilibrium at this position, certain position, certain angle पे equilibrium में आ जाएंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में कितने फोर्सेस लग रहे हैं एक पर्टिकुलर पेंडुलम का, हम अगर हम चेक करें इक्विलिब्रियम, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अदर वन इज Mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड वन इज टेंशन। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन का जो ये कंपोनेंट है, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल के साथ का कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है। ये एंगल थीटा है और ये t है, तो उसका ये कंपोनेंट t cos थीटा आएगा, t इज द टेंशन, और ये वाला कंपोनेंट t sin थीटा आएगा। ठीक है, तो वंस वी हैव टेकन द कंपोनेंट, अभी इसको नहीं लेंगे हम, t विल बी गोइंग, नाउ t cos थीटा विल बैलेंस mg और t sin थीटा विल बैलेंस इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यू कैन सी द इक्वेशन,
T sin theta is equal to electrical force and T cos theta is equal to weight of the pendulum which is equal to mg. ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, इक्वेशन बन गई, लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल बैलेंस इट नाउ। तो दोनों इक्वेशन लिख ली और डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे टी विल गेट कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी tan थीटा, और इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन mg। इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, k q1 q2 by r square, ये r will be this distance which can be found out in terms of theta and l। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखो, okay, this is the answer, k q1 q2 by r square upon mg, तो ये आंसर हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, ये एंगल इक्वल होंगे क्या? सपोज हमने इधर का एंगल θ1 लिया और इधर का एंगल θ2 लिया, विल दे बी इक्वल और नो? आंसर इज may be equal, may not be equal, depending upon the masses, not on the charges। चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्जेस है अनइक्वल होंगे तभी भी एंगल इक्वल होंगे, θ1 विल बी इक्वल टू θ2, बट मासेस, इसका मास m1 और इसका m2, दैट विल डिसाइड द एंगल। ये नाउ यू कैन सी, ये सभी में रहेंगे ये टर्म्स, ये और g भी, तो tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। Got it? m जो है, बिगर द मास स्मॉलर विल बी द एंगल। सपोज ये वाला मास बड़ा है, एंगल ये छोटा होगा, ये दूर चला जाएगा, इट विल बी हैविंग मोर एंगल। और अगर ये मास बिगर है तो ये इट विल मेक लेसर एंगल, ऐसा आएगा, दिस विल बी अवे। तो जनरली क्वेश्चन में सेम मास के रहते हैं, तो यू सी दैट क्वेश्चन बुक्स में ये दोनों एंगल सेम रहते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। दोनों एंगल अगर मासेस अनइक्वल है तो एंगल विल बी डिफरेंट। तो यहाँ से हमें अपना आंसर यहाँ पे हो गया, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ये सॉल्व, दिस इज द आंसर, बट एक्स्ट्रा पॉइंट इज m, bigger the mass smaller will be the angle। Could you get this point everybody? इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या करना पड़ता है इसमें, टेंशन के दो पार्ट कर लिए, टेंशन को डिवाइड कर लिया, अपवर्ड कंपोनेंट में बैलेंस द वेट, और टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस करेगा, विच इज k q1 q2 by r square। तो दो इक्वेशन लिखी, डिवाइड कर दिया, tan थीटा इज इक्वल टू दिस। और चार्जेस इक्वल दिए होते हैं क्वेश्चंस में। इसका क्वेश्चन आई थिंक गिवन इन सम ऑफ द बुक गाइड्स में दिया होगा, क्लास में भी कराते हैं कभी कभी, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा चार्जेस अगर इक्वल है, तो बोलेंगे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू निकाल सकते हैं, ये सब इधर चले जाएंगे। ये आर की वैल्यू भी नहीं दी होती है, दे विल गिव यू एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल। तो हाउ टू गेट द आर, बोलो, ये एल, सॉरी ये एल है, आर इज नॉट गिवन, तो ये कितना होगा, r/2, मासेस इक्वल होंगे, सिमेट्रिक एंगल आएंगे, तो sin थीटा विल बी r/2 अपॉन l, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से r की वैल्यू मिल जाती है, यहाँ पर r इज अननोन, लेंथ इज नोन, तो r भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो चार्ज q के लिए सॉल्व करना पड़ता है, अंडर रूट में आंसर आएगा कुछ, but if you are able to make this equation, you can find out any unknown। Just we'll wind up, you can note down, एक और पॉइंट बता दो इससे रिलेटेड पॉइंट, देन you can, देखो इससे रिलेटेड पॉइंट ये है कि in case of satellites, okay, in case of satellite, I need some space here, okay, ठीक है। in case of, इसको मैं हाइड कर दूं थोड़ा, in case of satellite, okay, in case of satellite क्या होगा,
what will be that gravity will become ineffective. So pendulum कैसे हो जाएंगे? They will be like this. They will be moving apart like this. ऐसे हो जाएंगे. One pendulum will come here, other will come here. एंगल कितना हो जाएगा? वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. थीटा विल बी 90 डिग्री, क्योंकि सैटेलाइट्स में ग्रेविटी इनइफेक्टिव हो जाती है. इन सैटेलाइट्स ग्रेविटी विल बी इनइफेक्टिव, थीटा विल बी 90 डिग्री. ये वाला वन ऑफ द एंगल, टोटल एंगल विल बी 180 डिग्री दोनों स्ट्रिंग के बीच में. और आर कितना हो जाएगा? दिस इज आर. It will be equal to twice of the length of the string. Each string of length of the each pendulum. ठीक है. तो इसमें फिर F कितना आ जाएगा? बोलते हैं they ask you find out the force. फोर्स कितना होगा? K Q square upon 4L square. L is the length of the string. ऐसे आ जाता है आंसर. K की वैल्यू भी लिख सकते हैं 1 upon. ओके. K की वैल्यू लिख सकते हैं 1 upon 4 pi. सॉरी. K की वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon naught लिख दो. So in case of two pendulums suspended in the satellite, angle will be 90, total angle will be 180, and distance between them R will be 2L. L is the length of the each string. So ये force will be this much. Only electrical force रहेगा. ठीक है. Just one more minute. This is okay. Are you comfortable with this question? Yes, sir. ठीक है. So finally, one more question I am giving you. Tomorrow we'll start the new topic, electrical dipole. तो ये नोट कर लो और ये क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लो each of you. ये लास्ट ये क्वेश्चन है. ओके, दिस इज डन. Yes, sir. Okay, you can take the snapshot of last question. ये वाला देखो. And try करो इसको. It is easy question if you get the clue. थोड़ा सा clue क्या है हमने दिया था. कंडक्टर में इवन न्यूट्रल कंडक्टर कैन बी अट्रैक्टेड. ये न्यूट्रल कंडक्टर है. हमने एक बार क्वेश्चन किया था, सपोज ये चार्ज बॉडी है और ये कॉपर का कंडक्टर है कोई. कैन इट बी अट्रैक्टेड? आंसर इज यस. इट विल बी ऑलवेज अट्रैक्टेड. रिपल्स नहीं होगा. न्यूट्रल कंडक्टर will always be attracted by the charged body. Always attraction. अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस आ जाएंगे, माइनस will be going away, then also it will be attracted. This is the clue. Somewhere we have discussed this point. Can the neutral body be attracted by the charged body? Answer is yes, always attracted. रिपेल नहीं होगी वो न्यूट्रल बॉडी. और बॉडी कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए. That was already done. We have done this question. तो इसका आंसर उसमें hidden है in that part. And if you remember that, then this question is very easy. Otherwise, you have to think a lot. और ये कौन सी है? ABC बॉडी. ये चार्ज प्लास्टिक बॉडी है. C कौन सा? C यहाँ भी है, यहाँ भी. It is the neutral copper plate. That's all. I will ship the host and then log out.